ویلکم ٹو پوڈکاسٹ ود گل بخاری. آج ہم فرائیڈے فوکس کا دوسرا شو کرنے جا رہے ہیں. یوزول ہوسٹس ہیں، میں ہوں، اینی زمان ہیں اور گلالئی اسماعیل ہیں. ہم نے سوچا کہ کیونکہ حال ہی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا، اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم عائشہ شفیع کا کیس پہ سنیں گے، آیا ہم اس کو سن سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کو بہت بڑی ون سمجھا گیا. مسئلہ یہ تھا کہ جب میشا نے جب ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر کی تھی اپنی پٹیشن، تو وہ مسترد ہوئی تھی ایک ٹیکنیکلٹی پہ. اس کے بعد انہوں نے اپیل کی ہائی کورٹ میں، وہ بھی مسترد ہوئی اسی ٹیکنیکلٹی پہ. ٹیکنیکلٹی کیا تھی کہ آپ ایک فری لانسر ہیں، آپ ورک پلیس ہراسمنٹ کا کیس نہیں کر سکتی، جس کو میڈیا نے عجیب و غریب طریقے سے عوام تک پہنچایا. امپریشن یہ گیا کہ علی ظفر جیت چکے ہیں اور میشا ہار چکی ہیں. ایسا نہیں تھا. میڈیا کا کردار، اس کے اوپر آگے چل کے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے میں گلالئی اسماعیل کو انویٹیشن دوں گی کہ وہ ہمیں اس کیس کی چھوٹی سی سمری دے دیں، تاکہ چاہے آپ کو معلوم ہو لیکن ہمارا ایک کانٹیکسٹ سیٹ آؤٹ ہو جائے گا کہ اب تک ہوا کیا. بہت شکریہ گل بخاری. میشا شفیع اور جنسی ہراسانی کے مسئلے کے اوپر آج شو کرنے کے لیے. میشا شفیع اور جو علی ظفر کا کیس ہے، علی ظفر کے خلاف جنسی ہراسانی کا قصہ ہے، یہ 2018 سے شروع ہوتا ہے، جب اپریل 2018 میں میشا شفیع جو ہیں تو انہوں نے ٹویٹر کے اوپر اپنے ساتھ ہونے والی جنسی ہراسانی کا ذکر کیا کہ علی ظفر نے انہیں متعدد مواقع کے اوپر جنسی ہراساں کیا ہے، اور انہوں نے اور بھی خواتین کو کہا کہ وہ بھی ہمت بڑھائیں اور آگے آئیں اور وہ اس خاموشی کو توڑیں. انہوں نے کہا کہ وہ اس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ جنسی ہراسانی کو لے کر جو خاموشی ہے، جو سائلنس ہے، وہ اس کو ختم کرنا چاہتی ہے. وہ خود 2 بیٹیوں کی ماں ہے، اور وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ہراسانی ہو جاتی ہو تو آپ بتائیں، تو اس کو لگا کہ اس کے ساتھ خود ہراسانی ہوئی ہے تو اس کو بھی آگے آنا ہوگا، بات کرنی چاہیے. جب اس نے جنسی ہراسانی کا اپنا ذکر کیا سوشل میڈیا کے اوپر، تو اس کے بعد علی ظفر نے فوراً سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس کو ڈینائی کیا اور کہا کہ الزامات غلط ہیں، اور وہ خود بھی جو ہیں تو وہ خاموشی کا ساتھ نہیں دیتے. اور عام طور پر وہی جو ہمارے یہاں طریقہ کار ہے کہ مرد جو استعمال کرتے ہیں آرگومنٹ کی، جی میں تو خود بیٹی کا باپ ہوں، میری تو بیوی ہے، میری تو ماں ہے، تو میں کیسے ہراسانی کر سکتا ہوں. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو مرد جنسی ہراسانی کرتے ہیں وہ کسی کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی بھی ماں ہوتی ہے، وہ ظاہری بات ہے مریخ سے نہیں آئے ہوتے، وہ ان کے خاندان ہوتے ہیں. تو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ کیونکہ میرا خاندان ہے تو میں جنسی ہراسانی کر نہیں سکتا نا. تو اس سے لیکن اس کا جب میشا شفیع جب آگے آئی تو اس کے بعد بہت ساری اور جو آرٹ سے ریلیٹڈ، میڈیا سے ریلیٹڈ عورتیں ہیں، ان کو ہمت ملی، وہ آگے بڑھیں، اور بہت ساری عورتوں نے اپنی جنسی ہراسانی جو علی ظفر نے ان کے ساتھ جنسی ہراسانی کی اس کا ذکر کیا، جس میں لینا غنی ہے. لینا غنی نے اسی دن ٹویٹ کی، انہوں نے اپنے ایکسپیرینس بتائے. ہمنا رضا نے بتایا کہ کس طرح سے جب انہوں نے ایک دفعہ کسی ان کو کسی پروگرام میں دیکھا، سیلفی لینے کی کوشش کی تو علی ظفر نے ان کو غلط طریقے سے چھوا. ماہم جاوید نے جو ہے تو بتایا کہ کس طرح سے ان کی کزن کو اس نے مولیسٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور باتھ روم میں دھکیل کر کانسنٹ کے بغیر اس کو چھومنے کی کوشش کی تھی. اسی طرح سے ایک اور ٹویٹر کے اوپر بلاگر ہیں صوفی، وہ آئی اور انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح سے ایک دفعہ علی ظفر کو جو بلایا گیا تھا کسی پروگرام میں، وہاں پر علی ظفر نے ان کے ایک والنٹیئر جو کہ ہائی اسکول کی اسٹوڈنٹ تھی اس کو مولیسٹ کیا، جس کے بعد وہ رو رہی تھی اور تب صوفی کو پتہ چلا. تو یہ بہت ایک پیٹرن آپ کو نظر آتا ہے ان ساری سٹوریز میں، جو کہ دنیا کے مختلف حصوں سے لڑکیوں نے، عورتوں نے آواز اٹھائی اور انہوں نے بتایا کہ اسی پیٹرن کے اوپر ان کو بھی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کسی بھی مہذب دنیا میں کہ جب علی ظفر کے اوپر الزامات لگے تو وہ سامنے آتے، وہ معافی مانگتے اور وہ بتاتے کہ اب وہ
अपने आप को सुधारने के लिए उनका क्या लाहे अमल है, वो किस तरह इससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये करने की बजाय उन्होंने इस तरह लगा कि जैसे जब औरतें सामने आना शुरू हुई तो छोटे से मर्द की छोटी सी ईगो बहुत बुरे तरीके से हिट हुई और उसने पूरे सिस्टम को इस्तेमाल करने की कोशिश की, इन औरतों को खामोश कराने की, इनकी करेक्टर असैसिनेशन की, इनको डिस्क्रेडिट करने की उसने मुकम्मल एक कोशिश जारी की। अब मैं थोड़ा सा समरी बताऊंगी कि किस तरह से अब आगे लीगली चीजें गई। एक तो जैसे ही अब मीशा ने जब ट्वीट की तो अली जफर ने पहले तो एक नोटिस भेजा, कानूनी नोटिस के माफी मांगो। मतलब अपने ट्विटर पे लिखता है कि मैं खामोशी के खिलाफ हूँ, कि साइलेंस का भी एक ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मीशा शफी को नोटिस भेजता है कि अपना ये ट्वीट हटाओ और मुझसे माफी मांगो, वरना तो मैं तुम्हें हर जाने का 100 करोड़ मतलब कि 1 करोड़ रुपए के हर जाने का नोटिस भेज दूंगा। तो मीशा शफी के वकील ने जवाब दिया कि हमने जो लिखा है ये सच लिखा है, और बल्कि नोटिस में उसको बड़े मजे की बात है डेफिनेशन बताई कि ये सेक्सुअल हरासमेंट की ये डेफिनेशन होती है। ये बराए मेहरबानी आप देख लें कि जब अनवांटेड टच होता है, अनवांटेड मैसेजेस होते हैं या अनवांटेड सेक्सुअल फेवर्स या कंडक्ट होता है तो ये हरासमेंट होती है। तो ये सारी बातें हकाइक पर मबनी है। इसके बाद मीशा शफी जो है तो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर हमें बड़ा ये सुनने को किया, मीडिया के ऊपर एक बताया जाता है ना कि जैसे गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जाती है कि मीशा शफी ने कोई अप्रोप्रिएट फॉर्म इस्तेमाल नहीं किया और वो तो सोशल मीडिया ट्रायल करती रही। ये बहुत यहाँ इस बात को क्लियर करना जरूरी है कि मीशा शफी ने अप्रैल 2018 को ही अपनी दरख्वास्त जो है उन्होंने पंजाब के ओम्बड्सपर्सन के पास दायर कर दी थी कि उनके साथ जिनसी हरासानी हुई है और बहुत तफसील से वो वाकयात बताए। लेकिन जो पंजाब के ओम्बड्सपर्सन है उन्होंने इस टेक्निकलिटी की बुनियाद पर कहा कि मैं ये केस नहीं सुन सकती क्योंकि ये वर्क स्पेस, आप फ्रीलांसर हैं तो जो फ्रीलांसर है वो वर्क स्पेस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का वो रिलेशनशिप नहीं है। तो हालांकि मैं समझती हूँ एनी इसके ऊपर आगे ज्यादा बात कर सकती हैं कि ये केस सुना जा सकता था। इसके बाद जो है मीशा शफी का जब यहाँ पर केस ओम्बड्सपर्सन ने नहीं सुना तो उन्होंने कानून के मुताबिक गवर्नर के पास अपील की। गवर्नर ने भी उसकी अपील जो है वो नहीं सुनी, उसने वही जो ओम्बड्सपर्सन का स्टांस था उसको कंटिन्यू रखा। उसके बाद मीशा शफी ने कानून का इस्तेमाल करते हुए वो हाई कोर्ट गई हैं। हाई कोर्ट में उन्होंने रिट पिटिशन डाली है कि मेरे साथ हरासमेंट हुई है, मैं ओम्बड्सपर्सन के पास गई हूँ, गवर्नर के पास गई हूँ, मेरी केस की सुनवाई नहीं हो रही, आप जो सेक्सुअल हरासमेंट का कानून है उसके मुताबिक मेरी केस की सुनवाई करें। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आता कि हम इंटरप्रेट करें कानून को, हम बताएं कि हम ये सुना जा सकता है कि नहीं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा इसके लिए। उसके बाद मीशा शफी और उसकी कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2019 की बात है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, जिसको काफी डिलेस का सामना करना पड़ा, जज पीछे हुए, तारीखों जैसा हमारे यहाँ आमतौर पर होता है कि जब आप अपने हक के लिए, खासकर जब औरतें अपने हक के लिए आगे आती हैं तो किस तरह सिस्टम उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और होता है सिस्टम उनके खिलाफ। तो बहुत डिलेस के बाद आखिरकार अब जाके, मतलब 2019 में किया था, 2021 में जाके आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि जी ठीक है, वो देखेंगे कि क्या ये केस सुना जा सकता है कि नहीं सुना जा सकता। लेकिन इसमें जो मीडिया को बहुत आपने जैसे शुक्रिया। बोले बताया कि मीडिया को ये बताने की कोशिश की गई कि जैसे अली जफर बरी हो चुके हैं, लेकिन वो बरी नहीं हुए कभी। टेक्निकल उसके ऊपर केस नहीं सुना गया। और आगे फिर अभी मेरे ख्याल में आगे जाएंगे, आगे बात करेंगे कि अली जफर ने कैसे डिफेमेशन का, क्योंकि ये तो मीशा शफी इस्तेमाल कर रही थी अपने हक के लिए, लेकिन इसके ऊपर भी थोड़ी बात करने की जरूरत है कि किस तरह से अली जफर ने जो डिफेमेशन का कानून है वो इस्तेमाल किया, जो साइबर क्राइम का कानून है वो इस्तेमाल किया कि इसके मीशा शफी और जो बाकी खवातीन और लोग बोले हैं सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ, उनकी आवाज को खामोश किया जा सके। तो अब जब आपको लगे तो फिर उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपने इंतहाई जामे किस्म की समरी दे दी है और आप वहां पर ले आई हैं जहां से मैंने स्टार्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त बात हुई है उसके पीछे बैकग्राउंड किया है। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। एनी गुलालई ने ये बात की कि इनको इसलिए 2 दफा टेक्निकल बेसिस पे इनकी पिटिशन को डिसमिस किया गया कि ये वर्क प्लेस हरासमेंट नहीं बनती क्योंकि आप फ्रीलांसर हैं। आखिर फ्रीलांसर भी तो कहीं पे काम करता है ना।
तो थोड़ा सा आपको दावत दूंगी कि आप उन लॉज की बात करें। देखिए वो लॉ जो है वो वर्क प्लेस हरासमेंट की बात करता है, और इनको 2 दफा इनकी पिटिशंस डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट में से रिजेक्ट हुई कि आप वर्क प्लेस आप है नहीं, आप तो फ्रीलांसर हैं। आप बताएंगी प्लीज कि ये कौन से लॉ इस्तेमाल हुए, ठीक है, किस लॉ के तहत मीशा ने कोर्ट ने, नंबर 1, और नंबर 2 ये क्या वजह है कि इतने अच्छे कवानीन के बावजूद जो 2010 में बने, और उसके ऊपर हम लेटर प्रोग्राम में बात करेंगे, ये क्या वजह है कि खवातीन को इतनी ज्यादा मुश्किलात का सामना है इन कवानीन के आने के बावजूद। मीशा बेचारी 2 साल से लगी हुई है, उल्टा उनके ऊपर डेफेमेशन का केस हो गया। एनी जी शुक्रिया गुल अलाई। इसमें प्रोड्यूसर साहब भी दिखा सकते हैं इस वक्त जो एक कानून है पाकिस्तान में 2010 में पास हुआ, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010, कि जिनसी हरासियत के बारे में यह कानून बनाया गया था 2010 में पाकिस्तान में। तो ये एक ऐसा कानून है, थोड़ा सा आई थिंक सबको जानना बहुत ज़रूरी है ये मीशा केस के अंदर, कि जिनसी हरासियत का पाकिस्तान में ये एक जुर्म है। अगर आप किसी औरत को या किसी मर्द को या किसी लाइक इवन थर्ड जेंडर किसी को भी आप तंग करते हैं तो ये आपको इसकी सज़ा मिलेगी, और सज़ा 3 साल से लेके आपको 5 लाख का जुर्माना भी है, और इसमें माफ़ी भी है, बातचीत भी है। और जो कानून है वो उसकी भी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। थोड़ा सा उसको मैं बता दूं आपको कि ये 2001 से एक मुहिम चल रही थी पाकिस्तान में, जो कि बिल्कुल निचली सतह से चली, और उसमें 6 इदारे थे, और एक खातून है जिनका नाम लेना बहुत ज़रूरी मैं समझती हूँ, बहुत अहम है पाकिस्तान में जो ख़वातीन की तरक्की पसंदाना जो कवानीन आए हैं उसके ऊपर, डॉक्टर फौजिया सईद। तो उनके साथ 6 और इदारे थे जिन्होंने 10 साल तक इस कानून पे काम किया है। पहले वो कानून नहीं था, वो एक अलायंस था, अलायंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, आशा के नाम से जाना जाता था। और मेरी उम्र की और मेरे तमाम नौजवान लड़कियां जानती हैं, क्योंकि हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी या वर्क प्लेस पे हमारे वक्त में उसका जिक्र बहुत ज़्यादा किया जाता था। और वो कानून नहीं था, वो कोड ऑफ कंडक्ट था, और हर औरत चाहती थी जो काम पे जाती थी कि अपने ऑफिस के अंदर अपनी मैनेजमेंट से बात करें, उनको कहेंगे जी आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट को साइन करें। इसके कानून बनने से पहले तक ये हर जगह पर इसकी जो डॉक्टर फौजिया और उनकी जो टीम थी, जो खवातीन थी, जो मर्द एलाइज थे, उन्होंने गांव-गांव जाके और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके वहाँ पर थिएटर किए, आम लोगों को समझाया, क्योंकि ये मसला जो अभी दिखाया जा रहा है आपको कि जी ये एक एलीट औरत का मसला है, या एक बड़ी वो एक मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, वो कपड़े कैसे पहनती है, वो दिखती कैसी है, ये मसला नहीं है। देखें, ये जो जिनसी हरासियत और काम की जगह पर जो आपको हिरासा किया जाता है औरत को, वो सिर्फ मीडिया में नहीं है, वो आपको घर में भी डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ भी हरासियत होती है, वो सड़क चलते पे भी होती है। लेकिन ये कानून क्योंकि सिर्फ वर्क प्लेस के लिए इसके अंदर कहा गया है कि आप इसके अंदर आता है, फ्रीलांसर भी आता है। और पाकिस्तान में 2010 में कानून आया। हम हमेशा अपने आप को इंडिया से कंपेयर करते हैं, तो इंडिया में 2013 में आया, ये भी आप देखें। हम लोग पिछले 4-5 साल में पीछे की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली इस केस में। हमारे लिए बहुत बड़ा एक इम्तिहान है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में जो भी तरक्की पसंद सोच के हामिल लोग हैं। तो थोड़ा सा आशा की तरफ मैं जाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि अगर प्रोड्यूसर साहब एक क्लिप दिखा दें ताकि सबको याद हो कि 2010 में हुआ क्या था। जहां साथ है कारवां साथ है, एक जहां साथ है कारवां साथ है। It has been moved that bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 and Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Law Amendment Bill 2009 be passed. तो ये क्लिप आपने देखी, और ये क्लिप बताती है कि 2000 से 2010 तक
औरतों की जद्दोजहद क्या थी, फिर उस वक्त हमारी जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो भी खातून है। और जो अगली क्लिप फौरन ही हम साथ एक और क्लिप देख लेते हैं जिसमें एक साइन प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि कितना अच्छा एक खूबसूरत वो तारीखी मुकाम है पाकिस्तान के लिए कि जो सदर साहब हैं वो सब खवातीन की जुर्मट में हैं और एक औरत के मुखालिफ नहीं बल्कि औरत के हक में और औरत की बेहतरी के लिए कानून जो है वो लाया गया। Because this is in fact the very first time that women's activists, members of parliament and all those who have taken a serious interest in social legislation, particularly that which pertains to the promotion and protection of women, are at a signing ceremony in the presidency. I would like to thank you and invite you, sir, to sign the bill. अब ये कानून का थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये कानून बड़ा ही जिन औरतों ने बनाया और जिन्होंने इस पे काम किया और साल काम किया, इसमें से कुछ लफ्ज निकाले भी गए जब बहुत सी बातें हुई। इसके अंदर सेक्सुअल का वर्ड निकाल दिया गया क्योंकि कुछ लोगों को मसला था, और लेकिन इनका बार बार मकसद ये था कि ये जो कानून है मुत्तफ़िक़ा तौर पे सब पार्टियां जो हैं इस पे रज़ा हों और फिर ही हम इसको पास करें, और ऐसा ही हुआ। सिर्फ चंद जो इस्लामी जमातें थी उनको थोड़ा मसला था कि उनका कहना था कि जी हमारे यहाँ तो कुछ जिनसी हरासानी होती नहीं, जैसे हमारे यहाँ रेप भी नहीं होता, ना हमारे यहाँ बच्चों के साथ कुछ होता है, ना औरतों के साथ होता है, तो वो तो डिनाइल में, मतलब बिल्कुल मुनकर नकीर इस पे। लेकिन कानून पास हो गया और उसके बाद 5 इस वक्त पाकिस्तान में मुहतसिब हैं ऑम्बड्स पर्सन पूरे पाकिस्तान के अंदर, 4 सूबों के अंदर और एक फेडरल लेवल पे। और इसका कानून का मकसद ये था कि अगर आप देखें इसको थोड़ा सा औरत इसका जिनसी हरासत के साथ बहुत ज़्यादा टैबू अटैच है कि अगर कोई औरत बात करती है कोर्ट कचहरी या पुलिस के पास जाना, तो इस कानून के तहत जो वर्क प्लेस है अपने दफ्तर के अंदर ही सोचा ये जाता है कि दफ्तर के अंदर ही एक कमेटी होगी जिसके अंदर 3 लोग होंगे और एक औरत का होना बहुत ज़रूरी है। आप उस कमेटी के पास जाएंगी या जाएंगे और कहेंगे कि जी मेरे साथ ये हुआ, अगर आप नहीं उससे राजी होते फिर आप ऑम्बड्स पर्सन मुहतसिब के पास जाते हैं। अब इसे बहुत सोचा गया है कि होता क्या है आप दफ्तर के अंदर, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे मतलब माफ़ी तलाफ़ी भी हो सकती है। अब इसमें जिस तरह मैं पढ़ी थी कि मीशा की तरफ के जो लॉयर हैं या उनकी साइड के लोग हैं, उन्होंने कहा कि मीशा इसको कोई विच हंट नहीं कर रही अली ज़फ़र को, अली ज़फ़र एक अच्छे मतलब वही जो गुलालाई ने बात की माफ़ी मांग लेते और कहते कि जी मेरे साथ हुआ ये मैंने किया, मैं माफ़ी मांगता हूँ इस बात। ठीक है, आपने उस चीज को बिल्कुल उल्टा, जो कि बिल्कुल हर जगह पर हम यही देखते हैं दुनिया में कि ऐसा ही होता है कि जो आप फौरन डेफेमेशन का केस ले आए या आप फौरन उसको चेंज कर दें, पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश करें। डेफिनेशन पे आते हैं, हमारे पास लिटरली 10 मिनट रह गए। मैं गुललई की तरफ आना चाहूंगी। आपने बहुत अच्छा बहुत मुफस्सिल हमें इसके ऊपर एनालिसिस दिया है। गुललई वापस आइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है इसी महीने इसी साल, आप क्यों समझती हैं कि खवातीन, आप, मैं, सब हम इसको एक बहुत बड़ी जीत क्यों समझ रहे हैं खवातीन के कॉज के लिए? इसके ऊपर आप जरा थोड़ा सा रोशनी डालिए। गुल अगर आप इजाजत दें तो मैं इस एनी की बात को बढ़ाते हुए जो अली ज़फ़र ने डिफेमेशन के कानून का इस्तेमाल करते हुए मीशा शफी को खामोश कराने की कोशिश की है उसके ऊपर 1-2 मिनट बात करना चाहूंगी। फिर आते हैं जब जैसे मीशा शफी, जैसे एनी ने कहा कि माफ़ी मांगी जा सकती थी और बात आगे रिकॉन्सिलिएशन की तरफ लेके जाई जा सकती थी, लेकिन अली ज़फ़र ने क्या किया कि जब ट्वीट कर दी थी मीशा शफी ने और नोटिस भेज दिया था, उसके बाद इन्होंने तो सबसे पहले जाकर डिफेमेशन का केस किया मीशा शफी के ऊपर और अदालत से रिक्वेस्ट की कि इसको खामोश कराया जाए, इसके ऊपर गैग ऑर्डर लिया, यानी कि मीशा शफी, अदालत ने मीशा शफी को कहा कि वो इस मामले के ऊपर पब्लिक में बात नहीं कर सकती, लेकिन मीशा शफी को खामोश कराया गया। उसके बाद और उनके साथियों की कई पेशियां की गई, उनको कई पेशियां भुगतनी पड़ी अदालत में, लेकिन उसके साथ मीशा अली ज़फ़र खुद जो हैं तो वो दर्जनों वो टीवी प्रोग्रामों में गए, वहां पर उन्होंने अपने आप को विक्टिम के तौर के ऊपर पेश किया, मीशा और जो लोग उसके सपोर्ट में खड़े थे उनको विलेन के तौर पर पेश किया कि ये तो मगरिब से पैसे लेने के लिए कर रहे हैं और मीशा शफी तो कनाडा में असाइलम लेने के लिए और वहां की सिटीजनशिप के लिए कर रही हैं। तो उनको पूरा यहाँ जो कानून का गलत इस्तेमाल हुआ कि अदालत ने मीशा शफी के ऊपर
पाबंदी लगाई जो कि विक्टिम है, और अली जफर को खुली छूट दी है, वो अपने आप को विक्टिम बनाकर पेश करता रहा है। अब अली जफर सिर्फ इसके ऊपर नहीं रुकता कि आपने डिफेमेशन केस किया हुआ है, उसने जाके एफआईए में इंक्वायरी खुलवाई उन सारे लोगों के खिलाफ, 25 लोगों के खिलाफ जिन्होंने मीशा शफी को सपोर्ट किया था उनको। उसके बाद एफआईए में पेशियां होने लगी उन लोगों की, और एफआईए ने जो है तो मुकदमा कर दिया मीशा शफी समेत 8 और लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया कि अली जफर को आपने डिफेम किया है। तो क्रिमिनल और सिविल दोनों प्रोसीडिंग्स जो हैं तो वो मीशा और उसके दो जो सपोर्टर्स थे उसके खिलाफ शुरू हो गई। तो एफआईए में मुकदमा करने के बाद जो हमने रिस्पॉन्स देखा एफआईए का कि वो कितना जेंडर इनसेंसिटिव रिस्पॉन्स था, वो विक्टिम सेंटर्ड नहीं था कि वो उनको ये समझ हो कि एक बंदा सेक्सुअली हरास हुआ है, वो सेक्सुअल हरासमेंट की बात कर रहा है तो हम सेक्सुअल हरासर के ऊपर मुकदमा करें। क्योंकि ये कानून बनाते वक्त तो आप रियासत कहती थी कि हम औरत को बचाने के लिए कानून बना रहे हैं, हम तो ये नहीं कहते, हमें पता था कि रियासत का कानून है हमारे खिलाफ इस्तेमाल होना है, लेकिन रियासत तो हमारा नाम लेती थी कि औरतों को बचाना है। तो अली जफर के ऊपर हरासमेंट का केस करने की बजाय कि बेटा आप हरासर हो, आप आए जेल में, आपके ऊपर हम मुकदमा करेंगे, उल्टा इन मीशा शफी और उस 8 और लोगों के ऊपर मुकदमा बना दिया गया। उसके बाद मुकदमा बनाने के बाद जब इन्होंने अपनी इंक्वायरी जो की और उसका चालान सबमिट किया अदालत में, तो उसके बाद मीडिया को बहुत गलत तरीके से फीड भी किया और इस तरह से बताया गया कि एफआईए ने गिल्टी करार दिया है मीशा शफी और उसके कुछ सपोर्टर्स को। हालांकि एफआईए एक इन्वेस्टिगेशन इदारा है, वो किसी को गिल्टी करार दे ही नहीं सकता, उसके पास ये इख्तियार नहीं। और हमारे यहाँ डॉन जैसे अच्छे अखबार ने भी ऐसे खबर लगाई जो कि बड़ी मिसगाइडिंग और मिसलीडिंग थी। बिल्कुल ठीक है गुल अलाई, हमारे पास लिटरली 6 मिनट रह गए हैं। सो सॉरी। ठीक है, मैं 6 मिनट में क्योंकि मैं आपको बलूचिस्तान और इस्लामिया कॉलेज के ऊपर भी लाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले बहुत जल्दी 1 मिनट के अंदर जो आपने केसेस की बात की जो मीशा के खिलाफ डेफेमेशन के लाए गए, वो पीका के कानून के थ्रू लाए गए जो 2016 में आया था। उसमें मैं बहुत इन्वॉल्व थी, मैं उसके अगेंस्ट लॉबी कर रही थी और ये बिल्कुल पाकिस्तान के किसी सिटीजन के हकूक के लिए नहीं लाया गया था। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे मालूम है कि निगरान ने भी कुछ इंटरव्यूज दिए हैं, उन्होंने कहा है कि जो लॉ आया था खवातीन के दिफा के लिए, उसको खवातीन को साइलेंस करने के लिए उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसकी असलियत असल में ये है कि ये किसी के लिए नहीं आया गया था। मैंने उस वक्त भी जो लॉबी किया था, और इसके ऊपर एक अलग शो हो सकता है, पीका के ऊपर एक मुकम्मल शो हो सकता है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का लॉ है। मैंने अपोजिशन को भी लॉबी किया था, मैंने हुकूमत को भी लॉबी किया था, और मैंने कहा था ये हमारे ऊपर चलाने से पहले आपके ऊपर चलेगा, और वो वाकई चला। इसके ऊपर अलग से बात करेंगे। हमें मालूम है कि पीका इस्तेमाल हुआ है लाहौर ग्रामर स्कूल की बच्चियों को खामोश कराने के लिए। हमें मालूम है कि पीका यूज हुआ है लम्स में फेसबुक पेज उतरवाने के लिए, वहां पे लड़कियों को खामोश कराने के लिए जो सेक्सुअली हरास हुई हैं। ये उन लड़कियों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है जो देखे ना 25 में से 12 रह गई। बहुत सारियों ने अपॉलॉजी दी और वो खामोश हो गई क्योंकि उनको पीका से थ्रेटन किया गया था। सोचिए, मैं अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे कहूंगी, सोचिए कि एक कानून खवातीन को चुप कराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमें पीका के ऊपर मजीद कुछ काम और एहतजाज और प्रोग्राम करना होगा। उसके जल्दी से गुलाल के पास वापस आती हूँ। ये सेक्सुअल हरासमेंट जो है ये बहुत बड़ा मसला है। हालांकि 2010 से कवानीन बने हुए हैं और बहुत अच्छे कवानीन बने हुए हैं जिनके ऊपर एनी ने बड़े मुफस्सल आपको दिया, लेकिन गुलाल ये आपको बताएंगी कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी और इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर में क्या हुआ। बिल्कुल, हमारे यहाँ जिनसी हरासानी जो है तो मर्दों को लगता है कि जैसे ये उनका राइट है कि वो ये उनका प्रिविलेज है, और जब औरतें जिनसी हरासानी के खिलाफ बात करती हैं, मकबूल जान याद है आपको? और मकबूल जान ही सेड दिस इज आवर राइट, यू रिमेंबर? एग्जैक्टली। तो इसलिए जब औरतें बोलती हैं तो मर्दों को लगता है कि जैसे उनकी खिलाफ वर्जी हो गई है, वो वायलेट हो गए हैं, और फिर वो
डिफेमेशन जैसे कवानीन का या जो FIA है जो कि उनके साथ खड़ा उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये समझती हूँ कि बताना ज़रूरी है कि पिछले 10 साल में हमने बहुत प्रोग्रेस देखी है। औरतों ने हज़ारों की तादाद में, चाहे वो ये तालीमी इदारे हैं, चाहे काम करने की जगह है, वो हस्पताल हैं, कारखाने हैं, औरतें आगे आई हैं, वो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ बोली हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ बयानिया बदला है। जैसे एनी ने जिक्र भी किया कि पहले इसको अखलाकी तौर पर बुरा समझा जाता था, पिछले 10 साल में कन्वर्सेशन चेंज हुई और इसकी जुर्म के तौर के ऊपर बात होती है कि ये एक जुर्म है। हमने देखा कि पिछले साल बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में भी जिनसी हरासानी का मसला जब आया तो बलूचिस्तान में लड़कियां सड़कों पर निकली हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की उन्होंने कहा हमारी यूनिवर्सिटी में जो कैमरे लगाए गए हैं इससे ये बाथरूम तक में सर्वेलेंस कैमरे लगाए गए हैं और बच्चियों को जो है, लड़कियों को, स्टूडेंट्स को वो ब्लैकमेल किया जाता है उनकी वीडियोस की बुनियाद पर या जब वो अपने क्लास फेलो से बात करती हैं। और उसके बाद उनके एहतजाज की वजह से हाई कोर्ट को नोटिस लेना पड़ा और सेनेट की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है उनको नोटिस लेना पड़ा और पूरी कमीशन बैठा उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो रिपोर्ट में इतने होलनाक हकाइक हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जिनसी हरासानी के हवाले से कि हाई कोर्ट ने वो रिपोर्ट पब्लिक करने से इनकार किया है। इसी तरह से हमने देखा कि पेशावर में बच्चियां निकली हैं, लड़कियां, बच्चियां सॉरी मैं कह रही हूँ कि अब उम्र अपनी ज्यादा है लगती है, लेकिन जो पेशावर इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़कियां हैं वो निकली हैं सड़कों के ऊपर, उन्होंने एहतजाज किया है जिनसी हरासानी के खिलाफ और उनके साथ उनके क्लास फेलोज लड़के भी निकले हैं कि हाँ यहाँ पर प्रोफेसर्स और डीन्स लड़कियों को हरासा करते हैं तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और उसके बाद अब जो मुहतसिब हैं खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया हुआ है, कमेटी बनी हुई है उसके खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है सबसे हौलनाक बलूचिस्तान का किस्सा है कि उसके ऊपर FIA को ऑर्डर किया जाता है कि आप एक रिपोर्ट तैयार करें। FIA तैयार करके बलूचिस्तान हाई कोर्ट में देती है और वहाँ का चीफ जस्टिस और एक और जस्टिस जो बेंच पे बैठे हुए हैं वो कहते हैं इसको पब्लिक नहीं करना। तो या तो यानी दोनों बातें हैं, सॉरी ललई, कि इसमें कुछ बहुत हौलनाक हकाइक सामने आए हैं और दूसरी बात ये कि इतने पावरफुल लोग हैं कि वो रिपोर्ट पब्लिक होने से रोकी गई है। मेरा ख्याल है उसके ऊपर काम होना चाहिए। यहाँ पे मैं कंक्लूड करूंगी और मुबारक दूंगी सबको कि हम सिर्फ मेरा ख्याल है 1 मिनट ओवर टाइम जाएंगे। गुल, मैं दरखास्त करूंगी कि हम खत्म करने से पहले गुलालाई से रिक्वेस्ट करें कि वो हमें एक पोएम जो वो चाहती थी सुनानी थी, सुनाइए पोएम, सुनाइए। सॉरी, शुक्रिया। ये मेरी दोस्त नजराना यूसुफजई की नज़म है जो इन्होंने मीशा शफी और उसके साथियों के ऊपर जब मुकदमा बनाया गया तो उसके बाद उन्होंने लिखी थी मीटू के हवाले से। उन्वान है इसका मैं भी कहती है मेरे साथ भी, घर में, रिश्तेदारों में, गैरत के पहरेदारों में, कूचों में, बाजारों में, दफ्तर में, चौराहों में जुल्म हुआ है। कहती है मुझे इस हवस पिदराना शाही से आज़ादी लेनी है। कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये भी कहती है खाना खुद गर्म करो, अपने मोज़े खुद ढूंढो। कहती है ऐसा नहीं चलेगा। कहती है अपनी गैरत अपने पास रख। हमने तो इसकी ज़ुबान पर सॉरी मुझसे चला गया। हमने तो इसकी ज़ुबान पर सैकड़ों हजारों साल मुतवातर बार बार बंदिशों के ताले लगाए थे। इसकी हर सोच पर, हर ख्याल पर मुद्दतों के जाले लगाए थे। इसकी ख्वाहिशों के कब्रिस्तान पर मर्दानगी के झंडे गाड़े थे। मजहब, रिवायत, निस्बत, मोहब्बत के बेशुमार फंदे पहनाए थे। घर से लेकर कब्रिस्तान तक अपने नाम के तख्ते लगाए थे। हमें यकीन है वजूद जन हमारे वजूद के बका की जमानत के सिवा कुछ भी नहीं। ये किसी बेटे की, किसी बाप, किसी आशिक को बेसबब मालिक गनीमत के सिवा कुछ भी नहीं। ये लाश चलती रहे और जनती रहे, इसका शऊर बगावत के सिवा कुछ भी नहीं। ये मगरबी फेमिनिज्म, शमिनिज्म, मी टू, शी टू एक बेशर्म, बेनाम रकाबत के सिवा कुछ भी नहीं। इसकी कोई लकीर, कोई तहरीर, कोई तहरीक मेरे इजाजत के बिना कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया गुलालाई पढ़ने का और बहुत शुक्रिया नजराना का
ये लिखने के लिए इसको हम अब एंड करेंगे और कंक्लूड करेंगे, और मैं कंक्लूजन में सिर्फ ये करूँ कि इसको हम जारी तो रखेंगे टॉपिक को वक्तन फवक्तन, लेकिन ये इतना ट्रॉमेटाइजिंग और इतना थका देने वाला एक्सपीरियंस होता है औरतों के लिए कि वो आवाज उठाएं, क्योंकि जब वो आवाज उठाती हैं तो उनके ऊपर दोबारा हरासमेंट आती है, दोबारा अटैक्स आते हैं। लेकिन पाकिस्तानी खवातीन जो हैं वो कुछ अरसा पहले से ये काम कर रही हैं, जो हमसे थोड़ी सी ओल्डर जनरेशन है, ये काम उन्होंने शुरू किया था ताकि उनके बाद आने वाली नस्लों को थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए, वो कुछ बंद बांध कर चली जाए। इन खवातीन को मैं सलूट पेश करना चाहती हूँ जिन्होंने निहायत मेहनत की, और इन्होंने 2010 में, यानी उससे पहले कितना सालों इन्होंने काम किया, 2010 में इन्होंने ये बंद बांधे कि इन्होंने ये कवानीन बनवाए सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट। और जो गुलालई ने बात की थी उसको एक दफा रिपीट करती हूँ कि ये सिर्फ एक अनएथिकल इमोरल बिहेवियर नहीं है, ये क्रिमिनल बिहेवियर है। पाकिस्तान के कवानीन इसको जुर्म करार देते हैं और इसमें सजा होनी चाहिए। उन लोगों के लिए जो ये काम करते हैं, जो हरासगी करते हैं औरतों की, जिनसी हरासगी करते हैं, उनके लिए सजा होनी चाहिए। जो खवातीन बोली इस जमाने में 2018, 19, 20, हम उनके मशकूर हैं, हम आपको सुन रहे हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन खवातीन के बाद बिल्कुल आखिर में औरतें तो लड़ती रहेंगी, लेकिन जो मर्द हज़रात हमारे साथ खड़े हुए हैं उनको बहुत सलूट। ये औरतों की कॉज नहीं है, ये इंसानों की कॉज है। सब विमेन राइट्स ह्यूमन राइट्स हैं, और जो मर्द हज़रात हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ फाइट कर रहे हैं, उनको सलूट। आज के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।